We will have this webinar both in English and Hindi, Marathi. Sort of the speakers who will speak in English and hopefully translate part of it, and those who are speaking in Marathi, Hindi will translate. I will try to translate if it's not being translated. As everyone knows, we are having this meeting under very disturbing circumstances. The Maharashtra Special Public Security Bill was introduced in the Legislative Assembly in July 2024. At that point of time, hardly anyone knew about the draconian provisions, and we managed to have access of the bill and submitted our objections, PUCL, as along with 80 other organizations. That was in July 2024. Meanwhile, since the Legislative Assembly got over, the bill lapsed, and therefore in December 2024, they introduced it again. At that point of time, there was a lot of hue and cry because it was not made public in public domain. Finally, they placed it in public domain, and various organizations have now taken up this issue and have held several meetings, which is a very good thing in terms of people being aware of the very draconian provisions. The bill basically was introduced on the ostensible ground that it is necessary to curb the proliferation of urban Naxalism. Yet the sinister design behind it can easily be seen from the provisions in the Act, the definitions which people will speak about. The definitions are most of the important definitions, like, for example, menace, unlawful activity, distrust. All these are extremely vague and undefined and seek to criminalize even legitimate protests and campaigns against these provisions. So therefore, we felt it necessary to have sort of a webinar to explain in simple language what these provisions are and what we can do to oppose them. As we know, it's not just restricted to various organizations and political parties and political persons, but it seeps down to even people, for example, a worker demanding his legitimate dues, or a farmer basically demanding that water be provided to his land, or slum dwellers opposing the encroachment of builders, etc., etc. We can go on endlessly. Every person in society is going to be impacted by this bill, and therefore it is even more essential that we get together and oppose it. So I'll end there, but I would just like to say that this meeting has been organized by PUCL, which is, as everyone knows, it's a national body which has been in existence since 1976. The PUCL has basically been taking up issues relating to violation of civil rights and civil liberties. We have also published various articles and booklets on various aspects of violations of civil rights. We have also organized seminars, lectures, public meetings to explain provisions of various oppressive laws, etc., etc. So we will be putting on in the chat box the address of PUCL. If anyone wants to become a member, please be free to do so. We will, after the speakers finish, we will have a question and answer, where people can put it in their chat, and then the speakers will respond to it. So I will start with Mihir Desai, who is a well-known, highly respected civil rights lawyer and has been practicing as a senior advocate both in the Bombay High Court and the Supreme Court. He has, for several decades, been relentlessly defending, protecting, and fighting for the rights of victims of hate crimes from Gujarat to Bombay, defending the rights of slum dwellers, Adivasis, workers, and most recently of which he was appointed as amicus with regard to the working conditions of sugar factory workers, cane cutters,
and has made several suggestions. Those suggestions have now been accepted by the government. So Mihir will give an overview of the bill and the various draconian provisions. Yes, Mihir. थैंक्स गायत्री. गायत्री ने अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया, इसलिए जो उससे मेरे बारे में बोला वही उनको भी लागू होता है, शायद और ज्यादा बढ़ के. तो और आप लोग सब पहचानते हैं, यानी उसके बारे में मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा. महाराष्ट्र, मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में बात करूंगा. महाराष्ट्र पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट जो लाने की कोशिश कर रही है गवर्नमेंट, हो सकता है कि मॉनसून सेशन में वो लाया जाए, क्योंकि अभी एक कमेटी बैठी है जो इसके बारे में चर्चा कर रही है, तो हो सकता है मॉनसून सेशन में लाया जाए. हमें क्या दिक्कत है उससे? व्हाट आर आवर प्रॉब्लम्स विद दिस पर्टिकुलर लॉ is what I'm going to talk about. What does the law say and what are our problems? These are the two things which I'll speak about. जो उसका स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस है, यानी कि जहां वो बताते कि क्यों ये कानून लाया गया है, in that the main thing which they say and the only thing which they say actually is that Naxalism, which was earlier majorly in rural areas, has now spread to urban areas. और अर्बन एरियाज के अंदर अभी काफी अर्बन नक्सल्स जो बोलते हैं, वो जो बात करते हैं अर्बन नक्सल्स है, उनके बारे में कि उनकी वो जो अर्बन एरियाज में आए उनको काउंटर करने के लिए हम ये कानून लाते हैं. लेकिन ये जो बोला गया है स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस में, और जो एक्चुअल कानून में लिखा गया है, वॉट एवर इज मेंशन इन द एक्चुअल लॉ विच दे आर ट्राइंग टू पास, in the law they don't mention anything about urban luxuries, nothing. Okay, it's a very wide law. Okay, बहुत ही वाइड लॉ है, जिसमें किसी को भी, जैसे गायत्री ने कहा, किसी को भी उसके अंदर शामिल किया जा सकता है एज एन ऑफेंडर. पहली बात हमें यह ध्यान में रखनी चाहिए कि ये जो कानून है, ये कानून ज्यादा करके उसका इट्स मेन object is to ban what are known as unlawful organizations. Okay, prohibit unlawful organizations. Yet it is directed at organizations which the government can declare as unlawful. And then, of course, if you're a member of that organization, you can be tried, etc. The problem is this. Okay, one of the major problem, I mean, apart from the whole act is riddled with problems, but one of the major problems is this, that an unlawful organization is defined in such a broad way that it says that any organization, body or group of persons, whether known by any name or not, whether registered or not, whether governed by a constitution or not, okay, can be declared as an unlawful organization. इसका मतलब क्या होता है कि यानी ये ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को अनलॉफुल डिक्लेयर कर सकते हैं जो कोई भी एक कॉम्बिनेशन इंडिविजुअल्स का हो, जिसका कोई नाम हो या ना हो, जो रजिस्टर्ड हो या ना हो, जिसका कोई कॉन्स्टिट्यूशन संविधान हो या ना हो, ऐसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बैन कर सकते हैं. यानी अभी ऐसा नहीं है. आप सोचिए इसके बारे में कि हम लोग 4 लोग एक मीटिंग मिल रहे हैं, हम लोग ने कोई ऑर्गेनाइजेशन चालू नहीं किया है, हम लोग ऐसे ही मिल रहे हैं 4 लोग. वो लोग, गवर्नमेंट बोल सकती कि ये जो आप 4 लोग मिल रहे हैं वो एक ऑर्गेनाइजेशन है. हम बोलेंगे लेकिन हमारा तो रजिस्टर्ड नहीं है, तो क्या होगा? कानून में रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन हमारा तो नाम भी नहीं है. हम ऑर्गेनाइजेशन के साथ, वी डोंट इवन हैव अ नेम. ओके, वी आर नॉट एन ऑर्गेनाइजेशन, वी आर जस्ट 4 इंडिविजुअल्स मीटिंग. The government can say no, this is an organization and we are going to ban it. Okay, now so this is one of the major problems, that anything can be called as an organization where more than one person is involved. Okay, anything. Okay, so this is the first problem. अभी कौन से ऑर्गेनाइजेशन को बैन कर सकते हैं? An organization which is involved in unlawful activity.
यानी अगर वो ऑर्गेनाइजेशन अनलॉफुल, अगर ये ऑर्गेनाइजेशन या ग्रुप ऑफ मोर देन वन पर्सन आर इन्वॉल्व इन अनलॉफुल एक्टिविटी, उन्हें बैन कर सकते हैं। अनलॉफुल एक्टिविटी यानी क्या, कि हम लिख के, बोल के, एक्शन से, एक्शन से यानी अगर हम माइम आर्टिस्ट है या स्टैंड अप कॉमेडियन है, कौन सा भी एक्शन हो, उससे अगर पब्लिक ऑर्डर, ट्रैंक्विलिटी यानी शांतता वगैरह को इंटरफियर कर सकते हैं, अगर हम करते हैं, तो इसे अनलॉफुल एक्टिविटी बोला जाता है। लेकिन क्या है जिससे हम इसको और व्हाट इज द बेसिस फॉर interfering with this public order or with tranquility, peace, etc., public peace वगैरह? It doesn't have to be an action which actually leads to some action. If your activity is likely to be a menace, now what is menace we don't know, okay? If it is likely to be a menace, okay, to public order, peace, tranquility, etc., then it can be declared as unlawful activity. Okay? क्या चीजें हैं जो लाइकली टू बी मिनेस है? कौन सी चीजें हैं? अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लॉ में कुछ इंटरफियर करते हैं, यानी अगर पुलिस हमको मारने आता है और हम उनको रोकने की कोशिश करते हैं, ओके, या तो फिर हम किसी भी कानून का विरोध करते हैं, यानी हम बोलते हैं कि कानून को मत मानिए, ये कानून अच्छा नहीं है, इसको मत मानिए, इसका विरोध करना चाहिए, preaching disobedience of law, or any act which causes apprehension in the mind of the public. Any act which causes apprehension in the mind of public. Okay. Who is public? If I say, okay, that Muslims are being discriminated in this country, okay, it will cause apprehension in the minds of the Hindu right wing, the public. Okay. So by saying so, I can be treated as a person who is involved in unlawful activity. And if I am more than one person, then I can be treated as an organization. I can be banned. Okay. And I can be, of course, once I am banned, then अभी इसमें ऐसा लिखा है कि ये सब एक्टिविटी अगर आप करते हैं, यानी इसमें किसी भी तरह की एक्टिविटी, एनी टाइप ऑफ एक्टिविटी ऑफ दिस काइंड, जस्ट टू टेल यू, interferes with public order, interferes with administration of law or institution or personnel, or overawes public servant. So what is the meaning of overawing public servant? Or causes any kind of any act which causes apprehension in the mind of the people, or preaching disobedience of law, or to collect or to carry out to collect money to carry out any of these activities. All these are treated as unlawful activities. अभी एक बार ये और वो लोग ने तय किया कि ये आप एक से ज्यादा लोग मिलके अनलॉफुल एक्टिविटी में, जो उनके हिसाब से अनलॉफुल एक्टिविटी है, यानी कि अगर ट्रेड यूनियन प्रोटेस्ट करता है, अगर ये नया कानून आता है, समझो फार्मर्स एक्ट आता है या लेबर बिल आता है, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं, हम बोलते हैं कि हम इसको नहीं मानेंगे, आप लाएंगे तो भी हम उसका अपोज करेंगे, तो ये एक अनलॉफुल एक्टिविटी मानी जा सकती है। अगर हम लिखते हैं उसके बारे में, तो एक अनलॉफुल एक्टिविटी मानी जा सकती है, क्रिटिसिज्म करते हैं तो ये सब जो बातें हैं वो अनलॉफुल एक्टिविटी। अगर गवर्नमेंट तय करता है कि ये एक अनलॉफुल ऑर्गेनाइजेशन है जो अनलॉफुल एक्टिविटी कर रहा है, तो उसे बैन कर सकते हैं। बैनिंग नॉर्मली, ये यूएपीए जो अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट है सेंटर का, उसकी तरह का बैनिंग है कि बैनिंग नॉर्मली एक एडवाइजरी बोर्ड के पास रखने के बाद वो एडवाइजरी बोर्ड तय करेगी कि बैन करना चाहिए या नहीं, और उसके बाद बैन करेगी, ऐसा लिखा है। लेकिन इमरजेंसी सिचुएशन में वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को विदाउट पुटिंग इट बिफोर द एडवाइजरी बोर्ड बैन कर सकती है। यानी और वही होता आ रहा है यूएपीए में।
यूएपीए में कभी भी वो लोग पहले एडवाइजरी बोर्ड, सेम चीज लिखा है यूएपीए में, एडवाइजरी बोर्ड के पास जाओ, फिर वो बोलेगी कि इसको बैन करो तो ही बैन करो, लेकिन इमरजेंसी पावर से तो सेम चीज यहां भी है कि इमरजेंसी यूएपीए में भी कभी भी वो लोग एडवाइजरी बोर्ड के पास पहले जाते नहीं है, सीधा बैन लगा देते हैं और बाद में फिर जो करना है वो करते हैं। यहां ऐसा लिखा है कि ये जो बैन लगेगा वो 1 साल के लिए लगेगा, लेकिन 1 साल के बाद वो वापिस 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 रिन्यू कर सकते हैं आप ये बैन। वो कितने साल तक रिन्यू कर सकते हैं वैसा कुछ लिखा नहीं है, 100 साल तक भी रिन्यू कर सकते हैं ये बैन। तो लगेगा 1 साल के लिए, लेकिन at one given time it can be renewed for 1 year. ओके, उसके बाद ऐसा लिखा है कि अगर आप अगर ये ऑर्गेनाइजेशन बैन होने के बाद कुछ मीटिंग करती है, और वो मीटिंग में कोई भी मेंबर होता है, पीसफुल मीटिंग, ओके, पब्लिक मीटिंग, पीसफुल मीटिंग, प्राइवेट मीटिंग, पीसफुल मीटिंग, जो भी करती है, वहां अगर आप मेंबर नहीं है फिर भी वो मीटिंग में हाजिर रहे हैं, तो आपको you are an offender and you can be sent inside for 2 years. If you are a member, 3 years. If you are not a member, 2 years. सब ऑफेंसेस इसके अंदर कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल है, यानी आप पुलिस विदाउट एनीथिंग फर्दर कैन कम एंड अरेस्ट यू, और आपको बेल के लिए फिर मजिस्ट्रेट में या सेशंस कोर्ट में अप्लाई करना पड़ेगा, जो भी चीजें हैं। इसमें एक बात आप ध्यान में रखिए कि ये जो है इसका मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। सपोज आई go for a public meeting called by organization X. Organization X is not banned. Let's give an example कि कष्टकरी संगठन ने एक मीटिंग बुलाई, कष्टकरी या तो आईटक ने एक मीटिंग बुलाई है, आईटक बैंड नहीं है इसके अंदर, यानी ऐसा मान के चलते हैं कि आईटक बैंड नहीं है या कष्टकरी संगठन बैंड नहीं है, लेकिन उसमें 2-3 मेंबर ऐसे आते हैं जो पीयूसीएल के हैं और पीयूसीएल समझो बैन किया गया है, तो कोर्ट गवर्नमेंट ये मान के चल सकती है कि ये जो पूरे लोग हैं, ये मीटिंग शायद इससे बुलाई हो उससे बुलाई हो, पीयूसीएल के मेंबर्स इसमें आए, ये मीटिंग में आए, यानी ये एक्चुअली पीयूसीएल की मीटिंग है, इसलिए हम सिर्फ पीयूसीएल के मेंबर को नहीं, सब लोग जो भी हाजिर है यहां सबको पकड़ के अंदर डाल सकते हैं। तो ये इसका इम्पैक्ट, दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ दिस लॉ। द अदर थिंग इज, other aspect is I'll quickly run through 2 or 3 other things. One is that they can of course मैजिस्ट्रेट को ये है नोटिफाई करने का कि जहां ये इनका ये जो ऑर्गेनाइजेशन जिसको बैन किया गया है, समझो आईटक है, उसको बैन किया, आईटक को बैन किया कि आप अनलॉफुल ऑर्गेनाइजेशन है, आपको बैन किया, तो उसकी जो भी ऑफिस है वहां जाके उसको सील कर सकते हैं, वो ऑफिस सील कर सकते हैं। अगर ऑफिस किसके घर में है तो घर में जो भी रहते हैं वो सबको बाहर निकाल सकते हैं। एक इसमें ऐसा लिखा है, मे बी आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू देम, कि अगर वो घर में औरत और बच्चे रहते हैं तो उनको जरा संभाल के निकालना, नहीं निकालना ऐसा नहीं, संभाल के निकालना चाहिए, उनके ऊपर जबरदस्ती थोड़ी कम करो, लेकिन उनको भी निकालो, लेकिन जबरदस्ती कम। So the point is that you can attach any property which you claim to be the office, because organization is unregistered. Suppose an organization is unregistered, okay, you can claim any property to be the property of any house, to be property of that unregistered organization. You can go and attach that house, okay, and seal that house and remove everybody. Not only remove everybody, remove every movable property. यानी ऑफिस तो ये घर तो बंद कर दिया, लेकिन साथ में जो भी मूवेबल प्रॉपर्टी है उसको रिमूव करो, और वो सबको आप बेच सकते हैं, यानी गवर्नमेंट बेच सकती है वो सब प्रॉपर्टी को। तो और दूसरा, अगर ये ऑर्गेनाइजेशन, और अगर पैसा है बैंक में तो वो पैसा तो ऑफकोर्स फॉरफिट करेंगी गवर्नमेंट, वो पैसा बैंक का निकाल देंगे। दूसरा कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसमें ऐसा लिखा गया है कानून में कि उसने अपना नाम बदला, या एक भी मेंबर वो ऑर्गेनाइजेशन बैन होने के बाद अगर अपना नाम बदला तो भी वो ऑर्गेनाइजेशन वो बैन ही माना जाएगा। अगर एक भी मेंबर उस ऑर्गेनाइजेशन का बैन होने के बाद वो ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटी करता है, जैसे मैं बोल रहा हूं कि आई तक को बैन किया, और अगर एक भी मेंबर वो ट्रेड यूनियन में है और ट्रेड यूनियन एक्टिविटी चलाता है, तो वो
he will be found guilty, the organization would be found guilty, अंदर जाके जेल में रहो 3 साल 4 साल जो भी है. So this is the broad parameter of the law which they are bringing in. Now the point which I wanted to, अभी तक रूल्स आए नहीं है, रूल्स तो एक्ट आने के बाद आएंगे तभी पता चलेगा एक्चुअल एग्जीक्यूशन कैसे करें, लेकिन ये जो है पूरा ड्रैकोनियन है. जो भी उनको क्योंकि आज की तारीख पे आपके पास यूएपीए है, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट है, आपका नया भारतीय न्याय संहिता है जिसमें भी टेररिज्म है, दूसरे मर्डर है, एक्सटॉर्शन है, वेजिंग वॉर अगेंस्ट गवर्नमेंट है, सिडिशन भी है, सब है. आपका नया जो है कानून, उसमें आपके पास मकोका है, ऑर्गेनाइज क्राइम्स एक्ट का है, आपके पास गुंडाज एक्ट है महाराष्ट्र में मकोका है, गुंडाज एक्ट है, आपके पास पीएमएलए है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है. ये सब होने के बावजूद ये लाने की क्या जरूरत थी? सिर्फ एक ही जरूरत है कि यू क्लैंप डाउन ऑन डिसेंट. We want more and more weapons to clamp down on dissent of any kind. If there is a dissent, we'll clamp down. We'll call it an unlawful organization. आप एक बात ध्यान में रखिए कि छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी ऐसे कानून है. ओके, छत्तीसगढ़ में ऐसे कानून होने के बावजूद आपको सो कॉल्ड एनकाउंटर करने पड़ते हैं, क्योंकि ये कानून के बाद आपको एनकाउंटर करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए ना, कि कानून आ गया, लोगों को जेल में डालो, लेकिन उसके बाद पिछले 3 महीने में अगर 125 से ज्यादा एनकाउंटर आपको करने पड़े. छत्तीसगढ़ में यही कानून है. ओके, तेलंगाना में यही है, आंध्र प्रदेश में यही है. ओके, और 77 ऑर्गेनाइजेशंस बैन किए हैं ये जगह पे, ये तीनों जगह पे. तो और दूसरा वो बोलते हैं कि हम लोग जो है स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स और रीजंस में बोला है कि ये हम नक्सलाइट्स के जो फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए लाया गया है. ऐसा एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स में कि जो नक्सलिज्म के फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन ना तो नक्सलिज्म का किधर कानून के अंदर जिक्र है, ना तो फ्रंट ऑर्गेनाइजेशंस का जिक्र है. ये दोनों का कोई जिक्र नहीं है. सिर्फ ऐसा बोलते हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस कैन बी बैन. There is only one thing which is different between Chhattisgarh and other laws and Maharashtra Act. एक चीज फर्क है. वो चीज फर्क इतनी है कि छत्तीसगढ़ में ये अनलॉफुल एक्टिविटी जो करते हैं वो कोई इंडिविजुअल भी कैरी आउट करता है तो वो अंदर जा सकता है. महाराष्ट्र में वो एक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन, महाराष्ट्र में इंडिविजुअल को बैन नहीं कर रहे हैं ये कानून के अंदर, ऑर्गेनाइजेशंस को बैन कर रहे हैं. लेकिन ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन इस तरह से है, यानी दिस इज नॉट टारगेटेड एट इंडिविजुअल्स. आई मीन ऑन फेस ऑफ इट, ऑन पेपर. Okay, I'm just talking about what is on paper. It is not targeted at individuals. It's targeted at organizations and members of those organizations. And of course, if you attend meetings, then even if you are not a member, if you What happened, Mihir? Are you? I think he's frozen. Mihir? We can't hear you. Mihir, Unmute. you have muted yourself. Yeah. Can you hear me now? I disconnected. Yeah. No, so the point is that the way the organization is defined, which is complete, which is something which can include any two individuals, registered or not, calling themselves an organization or not, okay, having any constitution or not, it would obviously lead to targeting of individuals. Okay, so though on paper there is that slight difference between Chhattisgarh and Maharashtra acts, it is essentially that will remain on paper. Ultimately, ये जो कानून है, like all other laws which we are concerned with, which are being brought out by the government from time to time, this law is nothing else but an attack on constitutional values, constitutional freedom of speech, expression, right to organize, right to protest, जो हमें संविधान में दिए गए हैं, जो ऑलरेडी अंडर अटैक है, काफी अंडर अटैक है.
उसको और एक और one more way of attacking it is through this. That is what is through this law, and that is why this law has been brought in, okay, or is being brought in. And we need to oppose it very very strongly, क्योंकि कल एक बार ये कानून आ गया, बाद में उसका कितना उपयोग या दुरुपयोग जो भी आप कहे वो कितना होगा, हम आज जो हम मीटिंग कर रहे हैं वो मीटिंग अगर हम करें तो हम लोग को दे कैन call us together 100 people as an organization, put all 100 of us in jail. Okay, that's what the law says. Okay, so because we are talking about a law, we are saying that do not implement the law. We are talking, because we are saying that this law should not be implemented, we might be causing some public order problem. We may not actually cause public order problem. There's a tendency of causing public order problem. In view of all that, I think it becomes absolutely essential on part of all civil liberties organizations as well as individuals to oppose this tooth and nail. Thank you very much. Yeah, sorry. I just thanks, Mihir. So abhi Kalpana Sharma will speak. She, as everyone knows, she's a seasoned journalist for more than 53 years who has been writing on issues of human rights, focused on gender, environment, development issues, and urban poverty. She has authored a book on Dharavi, Rediscovering Dharavi. It's a fantastic book. I think everyone should read it in the present context. In 2019, she published The Silence and the Storm, Narratives of Violence Against Women. That's also a fantastic, very nicely written narratives of violence against women. She is currently a columnist with News Laundry. So, Kalpana, are you there? Yes, I'm here. Yeah, okay. Thank you, Gayatri, and thank you, Mihir, for that, for so many clarifications on the law. You know, I'm not a lawyer, and I went through it, and I think this has alarmed me even more than when I went through it as a non-legal person, because of what it says. So what I would like to speak of is not obviously to do with the law, but as a journalist, what I'd like to look at is the intent of the government. You know, why has this government thought of bringing in this law at this particular time? You know, what is it that should concern not just us as citizens, but even those of us who are in the media? And why has it been reintroduced at this time? So I think these are the questions that come to my mind. So to me, it's no coincidence that while this law is being brought in, the Maharashtra government is also planning to set up a media monitoring unit, is going to spend 10 crores on it. And it claims that the idea of this media monitoring unit is merely to look at the media, monitor it, to see negative news and positive news, and to counter the negative news with statements that will come from the government. And this is really odd because we know that all state governments have this Directorate of Publicity, Public Relations, and its job is precisely this. It monitors the media and it presents reports to the ministers and to the politicians about the ways various media houses are reacting to various government policies, you know. And then, of course, the media is then deluged with press releases from the government giving the counter view. So what is this media monitoring unit doing, you know, and why is it here? And to me, it's an interesting coincidence that the two go together. And I'll tell you why I'm interested in it, because I think many of us don't realize that for this kind of thing, in a way, Kashmir was the petri dish in which this was tried out, you know. After the abrogation of Article 370, the Kashmir media policy, for those of you who have not read it, please read it, because it really mirrors, or rather it reflects what governments want as far as the media is concerned. We know what they want, but this really lays it out in great detail. And we also know that in Kashmir, in addition to this media policy, the Public Safety Act has been used against journalists. And even today,
People like Irfan Mehraj and others are under arrest, and others may be out on jail but still have cases against them. So that is why, for me, this combination of something which is equivalent to a Public Safety Act and a media monitoring unit is something to consider, why these two have come in at this particular time together. The other thing is, I think this whole thing of fake and false news, we've already heard this again in the context of what the government of India tried to do with the fact-checking unit that it tried to set up under the IT Act. And as you know, that the Bombay High Court threw this out and said this was something that would curb the freedom of the press and was equivalent to censorship. So they haven't tried to bring that in again. So is it possible that the way around it would be to get state governments to bring in something similar? They will not call it fact-checking unit, they'll call it media monitoring unit or some other name. But basically, the intent will be the same, is to check what media is writing and what is false, or this binary of positive and negative. Now, I'll tell you why the positive and negative really alarms me, because I remember during the emergency that the Press and Information Bureau in Delhi had also prepared a list of media houses that were friendly and hostile. It was very clear. And this would determine a lot of different things about the way these media organizations would be treated. During COVID, which incidentally today is exactly 5 years since, the lockdown was brought in and we went into, even at that point, the government of India had sent out this media advisory to the owners of media houses saying that they should focus on positive news. Now, as a journalist, I don't understand this language at all, because our job as journalists is not to be the PR department of governments or of corporates or anybody else. Our job is to look at policy, whether it's being implemented, raise question, give voice to the people who are not heard, allow people to have their say, whether they agree with the government or the party in power or not. That is the space that the media is supposed to provide within a democracy. So how does this positive and negative come into the picture? And yet we are constantly hearing this positive and negative, for the media. Furthermore, I think now the situation after 10, 11 years now of the Modi government at the center, and then, the BJP in power in so many states, the media as such, the definition of the media that the governments in the states as well as at the center are concerned about is not our legacy media. I come from print media background. Television, certainly not, because television has anyway gone the way of singing the praises of the government and very rarely questions. I think the thorn in the flesh of all governments are the independent portals, the independent YouTube channels, and the journalists who are working out of the districts and smaller places without any protection from big media houses. We've just recently had, at the beginning of this year, we had the case of this young journalist in Chhattisgarh who was murdered because he was trying to expose what was going on with the infrastructure, Mukesh Chandrakar, with the scams that were going on in infrastructure implementation. And he had this YouTube channel through which he was bringing out much of this news. And my own, just generally trying to understand from people where they're getting their news from, I find more and more people are actually getting their news from social media, from YouTube, and from independent portals, and less so relying on, certainly on print and even television. So I think this is the reason the government is very keen to focus on this. And if you look at the Maharashtra media monitoring policy, they have made it a point to mention, of course, digital and independent and so on. And so I think the people who will come under scrutiny, under whom perhaps even this law will be used, because as Mihir says, you don't have to be a member of an organization. Suppose as a journalist, I attend a meeting by an organization that is apparently banned. It's my job as a journalist to go there and talk to them. But if I write something that gives their point of view, it's possible that I will also be labeled an urban Naxal, right? And I could also come under that law. I mean, I don't understand this fully. Mihir will have to explain this. But I think it's an alarming thing that state governments are doing this combination of bringing in this law
and also bringing in these kind of media policies. So I think in the larger context of freedom of expression and press freedom, the combination of these two things is something we should be alert about, and we should certainly find ways to inform people and protest. And again, legacy media, it's to me again, it's extraordinary that this law is being brought in, and there's hardly any discussion. I mean, I read a lot of newspapers every day. There's hardly any discussion on this law in Maharashtra. Maybe in the Marathi papers it's coming in. I don't know. And it should be the focus of a lot of discussion. Even the media monitoring units, there has been one or two editorials written in the Hindu and Indian Express, but otherwise hardly anything. And so therefore, I think, again, new ways will have to be found for us to bypass these the big media, which is not bothered because they're anyway decided which side they're on, or they've decided to play a balancing act. And we have to find ways through independent media to get across to citizens that this is what is being contemplated. And this sort of double strategy of monitoring the media on the one hand and then getting in a law under which you can send out a chilling message to anyone who is a critic, who can be labeled as being, against the government or creating public disorder or whatever. I think that is the thing, that combination is something that is truly alarming, and we ought to find ways to oppose it. Gayatri, I'm sorry, I don't know how I'm going to sum this up in Hindi. If somebody else can do it, I really would be. Yeah, thanks, Kalpana. Can someone do it, or should I do it? My Hindi is not all that great. Anyone volunteering? Okay. I'll just summarize what Kalpana said. Before I do that, I'd like to apologize on behalf of PUCL because there are a number of people trying to join, but because the capacity is more than 100, people have not been able to join. But we are recording it and it will be on the PUCL website. So as very briefly, what Kalpana spoke about is because sorry, उन्होंने जो context दिया, वो context ये कायदा अभी क्यों लाया जा रहा है उसके बारे में उन्होंने बात किया, और उसको जो मीडिया में जो हो रहा है, किस तरीके से मीडिया को कंट्रोल किया जा रहा है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के तौर से, उसके बारे में उन्होंने जिक्र किया. वो मेनली महाराष्ट्र गवर्नमेंट अभी एक मीडिया मॉनिटरिंग यूनिट सेटअप कर रहे हैं, और उसमें वो मॉनिटरिंग यूनिट बेसिकली जो जर्नलिस्ट है उनको उनका जो राइटअप्स है उसके बारे में मॉनिटर करने का उनका प्रपोजल है. वो मॉनिटर दोनों नेगेटिव और पॉजिटिव जो भी स्टेटमेंट्स है उसको मॉनिटर करेंगे. तो ये बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि ऑन व्हाट बेसिस आप ये डिफाइन करते हो कि ये नेगेटिव है और पॉजिटिव है, जबकि जर्नलिस्ट बेसिकली रिपोर्ट कर रहे हैं कुछ फैक्चुअल सिचुएशन के बारे में, और वो गवर्नमेंट के खिलाफ भी हो सकता है, और वो उस संदर्भ में वो नेगेटिव भी हो सकता है. तो ये एक बहुत ही खतरनाक अटेम्प्ट है. और फिर उन्होंने कश्मीर मीडिया पॉलिसी के बारे में बात किया, जो बेसिकली बहुत ही डिटेल में उन्होंने ये पॉलिसी लेआउट कर रहे हैं कि किस तरीके से मीडिया को कंट्रोल किया जाएगा. और ये जो पॉलिसी है इसको महाराष्ट्र गवर्नमेंट बेसिकली उसको इम्प्लीमेंट करने का कोशिश कर रही है. दूसरी बात है कि स्टेट गवर्नमेंट जो फैक्ट ट्रैकिंग यूनिट्स है, जिसके बारे में सरकार ने एक रूल निकाला था, और वो रूल बेसिकली ये था कि जो भी न्यूज़पेपर्स, न्यूज़ जर्नलिस्ट, रिपोर्टर्स अगर कुछ भी रिपोर्ट कर रहे हैं तो ये फैक्चुअल रिपोर्ट बराबर है या नहीं है, और ये गवर्नमेंट के खिलाफ है या गवर्नमेंट के फेवर में है, ये ट्रैकिंग वो सरकार कर सकती थी. और ये जो रूल है, इस बॉम्बे हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल किया गया, और ये ऑर्डर के हिसाब से वो फैक्ट ट्रैकिंग जो रूल था उसको रद्द किया गया. दूसरा है कि मीडिया लिस्ट, सरकार एक मीडिया लिस्ट बना रही है जिसके बारे में दोनों हॉस्टाइल और फ्रेंडली मीडिया के बारे में वो लिस्ट आउट करेंगे, ताकि वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सरकार के खिलाफ है और कौन प्रो गवर्नमेंट है.
लास्टली उन्होंने सॉरी गायत्री, मैं जरा इंटरप्ट करती हूँ, जो हॉस्टाइल और फ्रेंडली वो इमरजेंसी के टाइम पे था। ओके ओके हाँ, अभी ओके नहीं। not now okay so basically हमें एक ऑल्टरनेटिव ढूंढना चाहिए, क्योंकि जो मेन स्ट्रीम जो मीडिया है वो मेन स्ट्रीम मीडिया बेसिकली ऑलमोस्ट प्रो गवर्नमेंट है, इसलिए जो स्मॉलर जो न्यूज़पेपर्स है, जर्नलिस्ट है, इंडिपेंडेंट पोर्टल्स है, उसके ऊपर हम लोग फोकस करना चाहिए, ताकि जो जर्नलिस्ट है उनको हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एक उदाहरण उन्होंने दिया छत्तीसगढ़ के बारे में, जहाँ पे वो जर्नलिस्ट जो बेसिकली स्कैम के बारे में, इंफ्रास्ट्रक्चर स्कैम्स जो हो रहे थे उसके बारे में वो रिपोर्ट कर रहे थे और उनका मर्डर हुआ। तो फाइनली आई थिंक कल्पना, आई होप आई हैव समराइज्ड very briefly what you said. I'm sure I've not covered all the points. Is that okay? Yeah, thank you, thank you. So we will go to Ulka. उल्का सबको मालूम है, उल्का महाजन जो महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं, वो बेसिकली रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं विद आदिवासीज, मार्जिनल फार्मर्स, एग्रीकल्चरल लेबर्स अंडर द जो उनका जो संगठन के थ्रू से सर्वहारा जन आंदोलन, और उन्होंने बहुत सारे कैंपेन्स, सक्सेसफुल कैंपेन्स भी किए हैं, जिसमें रिलायंस SEZ के बारे में जो प्रपोजल था, जहाँ पे रिलायंस एक बहुत बड़ा प्रपोजल SEZ फार्म लैंड के ऊपर वो लगाने वाले थे और सरकार ने उसको मान्यता दिया था, उन्होंने बहुत ही बड़ा आंदोलन उसके बारे में किया और फाइनली वो SEZ रद्द हुआ। She is also fighting, she is also part of the National Right to Food campaign, as well as the campaign for the implementation of the Forest Rights Act. She is presently the state convener of Bharat Jodo Abhiyan, an initiative of citizens to counter communal forces and parties in recent elections. Ulka. जैसे कि मिहिर ने और कल्पना ने ऑलरेडी बताया है, इस कानून का दायरा क्या है। इस कानून के तहत वो किसी भी चीज को, यानी जब से ये बिल पेश किया गया है, हम सारे साथी मुड़ के देख रहे हैं कि हमारा कोई भी वक्तव्य, कोई भी भाषण, कोई भी मीटिंग, कोई भी रैली, आंदोलन, वो इस कानून के तहत अर्बन नक्सलिज्म ठहरा सकता। तो ये इतना ब्रॉड उन्होंने बना, ब्रॉड कहने से मैं उसको कहूँगी लूज है, बहुत ही लूज उसके सारे डेफिनेशंस है, जिसमें कुछ भी वो जो चाहे वो उसके अंदर लाके ये ऑफेंस दर्ज कर सकते। तो जाहिर है कि ये सरकार जो पहले से ही हम पिछले 10-11 साल से देख रहे हैं, सेंटर में और स्टेट में भी, जो बिल्कुल डेमोक्रेसी को कुचलना चाहती है, जनतंत्र को कुचलना चाहती है, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस का जिस तरह से डिजनरेशन उन्होंने किया है, और लोगों के बीच सच और झूठ की परख करने की ताकत जिस कदर खत्म की है उन्होंने, और लगातार, क्योंकि उनके हाथ में सारा मेन स्ट्रीम मीडिया है, सोशल मीडिया पर भी उनकी पेड टीम्स बैठी है, तो वो अगर कहे कि अभी दिन नहीं है रात है, तो लोग कहने लगेंगे कि हाँ हाँ दिन नहीं है रात ही है। इस कदर उन्होंने अपनी छाप या पकड़ पूरी जो पब्लिक ओपिनियन है, नैरेटिव्स जो आ रहे हैं उस पर जमा ली। और जाहिर है कि कोई भी तानाशाही सरकार सबसे ज्यादा डरती है लीडर नागरिकों से, जो उनकी आलोचना करेंगे, जो उनके जो भी एक्शंस है, उनकी पॉलिसीज है, उनके कानून है, उस पर उंगलियां उठाएंगे, या डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस जो अपनी भूमिका अदा नहीं कर रही कानून के दायरे में, उनकी भी आलोचना जो करेंगे, उनसे ऐसी तानाशाही सरकार हमेशा उनकी आवाज को चलना चाहेगी, और ये इसी दिशा में एक कदम है। तो जन की सुरक्षा की कोई बात नहीं है। जैसे इस कानून का जो नाम है जन सुरक्षा, कौन से जनों की सुरक्षा ही करना चाहते? जिन जनों के हकों के लिए लड़ने वाले संगठन है, ट्रेड यूनियन है, कार्यकर्ता है, मीडिया है, उनकी आवाज उछलना वो चाहती है। इसमें कौन से जनों की सुरक्षा है, ये पहला सवाल इसमें उठाना चाहिए, क्योंकि एक मनमानी और तानाशाही को वो कानूनन एक प्रक्रिया बनाना चाहते, तो वो जो भी करेंगे वो कानून के तहत
होगा, ये चित्र वो खड़ा करना चाहते। तो और कोई भी उनकी जो बेनिवोलेंट डिक्टेटर की वो छवि आगे ला रहे लगातार, और इलेक्शंस में भी हमने देखा कि वो भीख देना चाहेंगे मगर हक नहीं देंगे। तो ये जो बेनिवोलेंट डिक्टेटर की इमेज है, उसको कोई चोट पहुंचाएगा, उस पर सवाल उठाएगा, उसका पर्दाफाश करेगा, उनको वो उनकी आवाज बंद करना चाहते हैं। ये असली उद्देश्य इस कानून का है, और ये साफ है। जब ये इंट्रोड्यूस किया गया सेकेंड टाइम भी, महायुति सरकार बहुत बड़ी तादाद में जो उन्होंने वोट पाया है, उसके साथ जब वो जीत कर आई, और सेकेंड टाइम जब ये इंट्रोड्यूस किया गया महाराष्ट्र स्टेट लेजिस्लेचर में, तब फडणवीस का जो भाषण था उसमें उन्होंने ये साफ कहा कि भारत जोड़ो अभियान जैसे जो संगठन है, उनके बारे में उन्होंने बहुत कुछ उसमें कहा, और ये कहा कि सेंट्रल लेवल पर भी 100 से ज्यादा ऐसे संगठन हैं जो जुड़े हैं भारत जोड़ो अभियान के साथ, और महाराष्ट्र में ऐसे 40 ऑर्गेनाइजेशंस देखे गए हैं जो उनकी जो लिस्ट है अर्बन नक्सलाइट्स की, उस लिस्ट में आते हैं, और ये ऐसे संगठन इनसे जुड़े। तो हमने एक खुलेआम चुनौती दी थी इमीडिएटली फडणवीस के उस भाषण के बाद कि आप ऐसे नाम दे दीजिए, और नाना पटोले ने भी सीएम को लिखा था कि आप ये लिस्ट डिक्लेयर कर दीजिए। सेंटर ने जो लिस्ट पार्लियामेंट में रखी थी वो लिस्ट हमने देखी है, और इसमें कोई ऐसा नाम नहीं है जो भारत जोड़ो अभियान के साथ जुड़ा हो और जो उनकी लिस्ट में, वैसे ही स्टेट में है, लेकिन वो एक शक के दायरे में ऐसे सारे संगठनों को लाना चाहते हैं। और भारत जोड़ो अभियान जैसे जो प्रक्रियाएं लोकसभा चुनाव में और विधानसभा चुनाव में जिन्होंने इंटरवीन किया, और हमेशा जो आमतौर पर सामाजिक संगठन करते हैं, उससे ज्यादा एक राजनीतिक जिम्मेदारी निभाई, इस सरकार की पर्दाफाश करने की कोशिश की। और महाराष्ट्र में तो ये बहुत बड़े पैमाने पर लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव दोनों के बीच हुआ है। तो उनको लग रहा है कि ये खतरे की चीज है, और खतरे की घंटी उनके मन में बज चुकी है। और जैसे कोई भी तानाशाह बहुत ज्यादा डरता है, वैसे ये डरे हैं आम नागरिकों की ताकत से और उनके सशक्त होने से। तो ये जैसे ही निडर नागरिक ये अपनी आवाज बुलंद करेंगे, तानाशाह इस तरह के कानून लाएंगे, ये साफ है, और उसी दिशा में वो बढ़ रहे हैं। एक तरफ वो कह रहे हैं कि वो मैसेज देना चाहते हैं कि हमारी निगाह किस पर है, और हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके घर पर पुलिस पहुंच चुकी है, आसपास पहुंच चुकी है, बहुत तहकीकात की गई है, और ये मैसेज दिया गया है कि आप इनकी टारगेट में और आप इनके रडार पे हो। और इससे एक डर फैलाना वो चाहते हैं, ये साफ। एक तरफ वो दिखाना चाहती है सरकार कि हम किसी तरह का आतंकवाद और हिंसा नहीं सही, और उसको हम कंट्रोल करेंगे, उसको हम खत्म करेंगे। और लगातार अभी जो सेंट्रल होम मिनिस्टर और स्टेट होम मिनिस्टर जो सीएम भी है, वो लगातार ये दे रहे बहुत सारे उदाहरण कि कैसे हम नक्सलवाद खत्म करना चाहते। एक तरफ ये है, और दूसरी तरफ जिस तरह की बर्बरता उन्होंने राजनीति में लाई है, महाराष्ट्र में ही पिछले कुछ महीनों में जो घटनाएं हुई है, वो बीड़ में है, वो परभणी में है, गुजरात में भी जिस तरह से बिल्किस बानो के गुनाहगारों को उनकी सजा खत्म होने के पहले ही रिहा कर दिया गया, उनका सम्मान किया गया। ये सारा क्या जताता है? ये दिखा रहा है कि ये असली गुनहगार जो है उनको संरक्षण देना चाहती है, और जो लोग सवाल उठाना चाहते हैं, जनतंत्र को बचाना चाहते हैं, उनको वो शक के दायरे में लाए। तो ये साफ तरीके से समझना होगा, और इसलिए इस ड्रैकोनियन लॉ का विरोध तो बिल्कुल बहुत ताकत के साथ करना होगा, और अलग अलग स्तर पर इसका विरोध करना होगा। सबसे पहले लोगों के स्तर पर ये पूरे महाराष्ट्र में ले जाना होगा, और इस कानून के ऊपर डिस्ट्रिक्ट में, तहसील में उनकी मीटिंग्स हो, वकील, जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट और जो भी अन्य सिटीजन्स है, प्रोफेशनल्स है, उनके साथ ये करना होगा। कोर्ट में तो अगर कानून आ ही जाता है तो उसको चैलेंज तो करना ही होगा। स्टेट लेजिस्लेचर में हम सब जानते हैं कि ताकत बहुत कम है विपक्ष की, और बहुत ही कम विपक्ष के विधायक है जो उसको चैलेंज करेंगे, लेकिन उनके पास भी
हम ऑलरेडी ले गए हैं। और स्टेट लेजिस्लेचर में जो अभी जॉइंट सिलेक्ट कमेटी उन्होंने बिठाई है, उसमें भास्कर जाधव है, जयंत पाटिल है, अंबादास दानवे है, सतीश पाटिल है। इन चारों के साथ संपर्क हुआ है, और जो पीयूसीएल ने और अन्य लोगों ने भी जिस तरीके से ऑब्जेक्शंस तैयार की है, इसकी आलोचना हमारी क्या है, उसके पॉइंट्स उन तक पहुंचाए गए हैं। और वो ये मुद्दा जॉइंट सिलेक्ट कमेटी में भी उठा रहे हैं, स्टेट लेजिस्लेचर में भी उसको उठाएंगे। तो जुलाई में बिल्कुल ये आएगा। उन्होंने 1 अप्रैल तक ये दिया है टाइम कि 1 अप्रैल तक जॉइंट सिलेक्ट कमेटी के पास अपनी ऑब्जेक्शंस भेजनी है। तो आज जो यहाँ सुन रहे हैं उन सबको ये अपील है कि आप 1 अप्रैल के पहले इस पर अपनी ऑब्जेक्शंस जरूर भेजें। उसका जो ईमेल आईडी है वो बहुत सारे ग्रुप्स पर भेजा गया है। अगर किसी को वो ना मिला हो तो हम में से किसी को भी आप संपर्क कर सकते हैं। संध्या, गायत्री, मिहिर, मैं, लारा और भी अन्य बहुत सारे लोग हैं, वो आपके साथ शेयर कर सकेंगे। तो उस साइट पर उस मेल आईडी पर आपको दर्ज करने होंगे आपके ऑब्जेक्शंस, और ये साफ तौर पे कहना होगा कि हम नहीं चाहते ये को किसी भी, हम जनों की तरफ से ही कह रहे हैं कि ये जन की सुरक्षा नहीं है, ये तानाशाही सरकार की सुरक्षा है। और हम इसकी दिशा बिल्कुल समझ रहे हैं। तो ये कहते हुए इसका विरोध करना होगा। आज पुणे में रैली थी इसका विरोध करने के लिए। उसका क्या हुआ अभी तक इसका रिपोर्ट नहीं मिला है, लेकिन जगह जगह ये शुरू हो चुका है। वर्धा में पब्लिक मीटिंग हो चुकी है। 28 तारीख को मुंबई में सारी ट्रेड यूनियंस की एक बड़ी मीटिंग होने जा रही है परेल में। मीटिंग 2 से 5 बजे तक है, जो बड़ी मीटिंग है। लेकिन उसके पहले 11 बजे एक्टिविस्ट की एक मीटिंग है, जिसमें ये तय किया जाएगा कि महाराष्ट्र के स्तर पर बड़ा आंदोलन कैसे खड़ा हो, उसकी रणनीति कैसे होगी, वो कहाँ होगा, वो मुंबई में होगा या एक ही समय पर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में एक साथ होगा, ये वहां तय किया जाएगा। तो जिनको जाना संभव है बिल्कुल जाइए। 28 मार्च 11 बजे परेल में, उसका भी एड्रेस हम यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। तो हमको ये साफ भूमिका बिल्कुल लेने की जरूरत है कि ये होना नहीं चाहिए। ये कैसे कर सकते हैं, मीडिया में इसका बहुत कुछ करना चाहिए। यूट्यूबर्स उस पर कई सारे यूट्यूबर्स उस पर बोल रहे हैं, लेकिन शॉर्ट अपील करना, इंटरव्यूज वायरल करना, आर्टिकल्स महाराष्ट्र टाइम्स, लोकसत्ता, नवशक्ति में आ चुके हैं। लेकिन उनकी तरफ से भी आर्टिकल्स आ रहे हैं। और अभी अभी 2-4 दिन पहले ही प्रवीण दीक्षित जो डीजी थे महाराष्ट्र के, उन्होंने महाराष्ट्र टाइम्स में लिखा हुआ आर्टिकल आया था, और उन्होंने इसका समर्थन किया है। उनका पॉलिटिकल इंक्लिनेशन क्या है हम सब जानते हैं। तो उन्होंने साफ समर्थन किया है इस बिल का, और ये कहा है कि ये बेहद जरूरी है। तो उसका काउंटर भी होना चाहिए। महाराष्ट्र टाइम्स के पास भी अपने व्यूज भेजे जाना जरूरी है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट जो लेवल के न्यूज़पेपर्स होते हैं उसमें लिखा जाना बहुत जरूरी। तो उस पर भी हम ज्यादा लिखे, और बहुत सारी एमिनेंट पर्सनालिटीज को कांटेक्ट करना होगा जो इस पर भूमिका लें, वो थिएटर से हो, राइटर्स हो, या रिटायर्ड जस्टिस हो। बहुत सारे लोग जिनकी लिस्ट बनाकर उनको अप्रोच करना चाहिए और उनके पास ले जाना चाहिए कि वो इसका बिल पर पोजीशन ले, और ये ऑब्जेक्शंस भी वहां तक पहुंचाए ताकि उनको बुलाया जाए हियरिंग के लिए जॉइंट सिलेक्ट कमेटी के सामने। तो ये सब करना बेहद जरूरी है। ये करते हुए लोगों के आंदोलन लगातार चलने होंगे। ये कानून आए या न आए, लेकिन इसी दिशा में ये सरकार आने वाले 5 साल में बढ़ने वाली है, क्योंकि सेंटर में और स्टेट में जिस तरीके से वो सरकार चलाना चाहती है वो सबके सामने है। तो अगर जनतंत्र को बचाना है तो इस कानून का विरोध, सख्त विरोध करना होगा। और सिर्फ ये एक कानून की बात नहीं है, सारे फार्मर्स के जो काले कानून है उसकी भी बात है, वर्कर्स के बारे में जो श्रम संहिता लाई गई है वो भी है, और स्टेट एक्ट पर जिस तरह का हमला है, एनआरईजीए पर जो हो रहा है, इन सब बातों को जोड़कर इसको देखना होगा। इन सब की आलोचना हम ना करें और सरकार पर उंगली ना उठाए, इसलिए ये हमारी मुंह बंद करने की और हमारी आवाज दबाने की कोशिश है। ये साफ समझकर डेमोक्रेसी की सुरक्षा के लिए हमको आगे बढ़ना है।
Thanks, Ulka. Hello. I Hello. think everybody हाँ. understood क्योंकि I won't translate. Correct? Yes. सुन मैं I'm now in a meeting. I'll talk to you later. I'm going to. Sandhya, you are on. अच्छा, just before Sandhya starts, I just want to सबको मैं बताना चाहती हूँ कि अपना इसके ऊपर चैट के ऊपर जो बिल है दोनों इंग्लिश और मराठी में वो हम लोग ने अपलोड किया है. जो सेकंड जो सिविल सोसाइटी के ऑब्जेक्शंस है वो भी दोनों इंग्लिश और मराठी में अपलोड है. और पब्लिक नोटिस जहाँ पे उन्होंने बोला है कि ऑब्जेक्शन सबमिट होना चाहिए बिफोर द 21 मेंबर जॉइंट सिलेक्ट कमेटी बाय 1 अप्रैल 2025. वो भी चैट पे है तो लोग उसको डाउनलोड कर सकते हैं वो डॉक्यूमेंट्स को. लास्ट स्पीकर इज संध्या गोखले. She has been an very active member of the Forum Against Oppression of Women. In fact, the FAO was instrumental in basically bringing about changes in the rape laws in the 1980s, and subsequently there have been several campaigns conducted by FAO. She is also part of Saloka Samiti and also the Maharashtra State General Secretary of PUCL. Sandhya. एक्चुअली सभी बातें हो चुकी है. मैं 2-3 मिनट में कुछ बताना चाहूंगी. यानी इसका विरोध हमको किस तरह से करना है उसके ऊपर कुछ मेरे विचार रख रही हूँ. काफी चीजें उल्का ने बता दी है ऑलरेडी. और हमको ये देखना चाहिए कि कोई भी संगठन कभी भी किधर भी अपने घर के आसपास नजदीक में जब भी ये कानून के खिलाफ कोई भी आंदोलन का आवाज दे तो वहां हम बिना झिझक पहुंच जाना चाहिए. किसी भी संगठन जो इस कानून का विरोध करता हो तो. और एक तो ट्रेड यूनियन ने तो ऐसे तय कर लिया है कि बहुत बड़े पैमाने पे हमको चैलेंज करना पड़ेगा. उसकी दूसरी वजह ऐसी भी है कि जब हम अपने सुझाव लेके सिलेक्ट कमेटी मेंबर्स जो अपोजिशन पार्टी से उनको मिलने गए थे तो उन्होंने हमको क्लियरली बोला था कि हम तो ये सब बात जरूर करने वाले हैं. हम ये बिल के खिलाफ है लेकिन सच्चा अपोजिशन तो आप ही कर सकते हैं क्योंकि रास्ते पे उतर के जब जनता इसके खिलाफ आवाज करेगी तभी ये सरकार सुनेगी. हम जो बोल रहे हैं उससे ये सरकार बदलेगी नहीं. तो उन्होंने सीधा बताया कि जब तक जन आंदोलन नहीं होता है इसके ऊपर तब तक ये सरकार ये कानून लाएगी ही. अभी मेरे को और एक पॉइंट ऐसा डालना है कि ये सरकार ये कानून ये सरकार तो सब कुछ कर सकती है. ये कानून नहीं होने के बावजूद सब कुछ कर सकती है. तो और हम खाली एक डिफेंसिव संघर्ष कर रहे हैं कि ये कानून नहीं चाहिए बोल के संघर्ष कर रहे हैं. मैं सोच रही थी कई दिनों से कि क्या हम ऐसा एक वकील और एक्टिविस्ट लोगों का समूह बना सकते हैं कि जो सोचे कि हमको नागरिक अधिकार बिल बनाना है. और नागरिक अधिकार मैं समझती हूँ कि आज के जमाने में हम कौन सा भी कानून की जब मांग करेंगे तो हर एक कानून हमारे खिलाफ वेपनाइज होएगा. फिर भी ये ध्यान में रखते हुए अभी इसकी जरूरत क्या है. जैसे मैं बता रही हूँ कि ये कानून की जरूरत है नहीं गवर्नमेंट को क्योंकि गवर्नमेंट सब कुछ कर पा रही है ये कानून के बिना. जैसे पहले अगर वो कानून जहां से हमारे नागरिक अधिकारों को बचाना है ऐसे 3 विभाग है आज समाज में. एक है पॉलिटिशियन और सब मिनिस्टर्स, दूसरे है एग्जीक्यूटिव्स और तीसरे है पुलिस. तो अगर हम देखें कि ये मिनिस्टर्स वगैरह है तो हम देख रहे हैं कि अभी आज के ही पेपर में आया कि किस अधिकार से चीफ मिनिस्टर बोलता है कि हम नुकसान भरपाई के लिए लोगों की प्रॉपर्टी बेचेंगे. ये अधिकार उसको किसने दिया? उसने अपने आप ले लिया. उसको किसी कानून की जरूरत नहीं, वो ले लेता है ये अधिकार. दूसरे की आपको मालूम है ये नीलेश राणे उसके ऊपर 10 या 20 के ऊपर FIR है हेट कानून के, लेकिन उसको कोई हाथ नहीं लगा सकता.
तीसरी एक बात हम बोले, हम एक केस ऑलमोस्ट जीत चुके हैं बॉम्बे हाई कोर्ट में, क्योंकि महाराष्ट्र स्टेट बीजेपी का जो वाइस प्रेसिडेंट है विक्रम सावरकर, वो बहुत हेट स्पीच, बहुत ही नफरती भाषा बोलता था, इतने हद तक कि बच्चों को माँ के, मुस्लिम औरतों के कोख से निकाल के मारने की बात करता था बड़े पब्लिक मीटिंग में। ऐसा भयानक आदमी। उस उसके ऊपर पुलिस ने एफआईआर किया, उसका स्पीच का फोरेंसिक एनालिसिस हुआ, कोर्ट में, बॉम्बे हाई कोर्ट में केस चल रही थी, और इतना सब आरोप उसके खिलाफ होने के बावजूद एक ही लेटर गवर्नमेंट ने दिया कि हम सैंक्शन नहीं देते हैं इसको प्रोसिक्यूट करने के लिए, कोई वजह नहीं बताई, और उसके ऊपर कुछ केस नहीं होगी, क्योंकि गवर्नमेंट ने ये कानून लाया है कि अगर हेट क्राइम आप करते हो तो जब तक गवर्नमेंट सैंक्शन नहीं देती आपके खिलाफ केस नहीं हो सकती। तो इस तरह से ये सब लोग तो अपनी मनमानी कर रहे हैं, बच रहे हैं। तो एग्जीक्यूटिव देखो, अभी मालवण में क्या हुआ, उन्होंने तो बुलडोजर डाल ही दिया ना लोगों के घर के ऊपर। तो सवाल ऐसा होता है, जब भी ये लोग कानून को तोड़ते हैं तो हमको ओनली, हमारे सामने उपाय क्या होता है कि जाके कोर्ट के सामने जाए, और उसके बाद भी हमको पता नहीं कि हमको जस्टिस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। वही बात पुलिस की है। अभी ये कोम्बिंग ऑपरेशन जो नागपुर में हुआ, उसी तरह का कोम्बिंग ऑपरेशन परभणी में हुआ, और परभणी ने भी 100 से 150 लोगों को इतना बुरी तरह से पिटा गया, उसमें से एक कस्टोडियल डेथ भी हुआ। अभी आज के पेपर में जो एक आदमी मरा है, उसके एक मुसलमान लड़का मर गया, वो भी कैसे मरा हमको पता नहीं, उसको भी पुलिस ने हॉस्पिटल में लाया था। क्या पता वो मॉब ने मारा उसको कि पुलिस ने ही मारा, हमको पता ही नहीं चलेगा। तो ये जो कॉम्बिंग ऑपरेशन, यानी आज सीसीटीवी का जमाना है, अगर सीसीटीवी में कोई गुनाह करता हुआ व्यक्ति दिखता है तो पुलिस उसका पता लगा के उसको अरेस्ट कर सकती है। कॉम्बिंग ऑपरेशन की क्या जरूरत है? तो ये कॉम्बिंग ऑपरेशन उनको इतना अधिकार देता है। आपने बीबीसी का न्यूज भी देखा होगा कि नागपुर में से कितने लोगों को ऐसे ही पकड़ के पुलिस लेके गए, खाना खाते हुए लोगों को उठाकर लेकर गए। तो ये सब चीजें जो है वो ऑलरेडी पुलिस कर रहे हैं, एग्जीक्यूटिव कर रहा है, और मिनिस्टर भी कर रहा है। तो हमने बैठ के सोचना चाहिए कि हम किस तरह से सोच सकते हैं कि हम आम नागरिक को एक सेफ एनवायरनमेंट देने के लिए ये तीनों जो समाज के पॉलिटिशियन, मिनिस्टर्स, एग्जीक्यूटिव और पुलिस है, उसके अधिकार, उसको किस तरह से हम न्याय के सामने ला सकते हैं, कटघरे में खड़ा कर सकते हैं, ये हमको सोचना चाहिए। और वो भी हमारा कैंपेन का हम एक हिस्सा कर सकते हैं कि हम बोल सकते हैं कि ये कानून ये ला रहे हैं, हमको ये कानून नहीं, क्योंकि ये करने वाला है, लेकिन उनके पास ऑलरेडी ये है और ये कानून का दुरुपयोग कर रहे हैं, तो उनके ऊपर कानून लाना चाहिए कि उनका दुरुपयोग कैसे रोका जाए। तो ये खाली एक मेरे दिमाग में कुछ चल रहा था इसलिए मैंने बता दिया, लेकिन एक बात तो सही है कि किसी भी तरह से हमको ये कानून को रोकना पड़ेगा। यहाँ पे मैं मेरी बात खत्म करती हूँ। शुक्रिया। Thanks, Sandhya. I think we can open up the discussion for question and answers because there are a lot of questions, and I think many things which were not spoken about can be explained through the questions. So if I see that a lot of questions have come, and particularly if, on the issue of further explanation on the law, so if Mihir can just look at the questions and as you are answering, just read that question and answer it, so we can complete the response to the legal points. Okay, let me just quickly respond, because then one can have more discussion on what to do further. As far as the law part is concerned, 4 सवाल मेरे ख्याल से आए हैं, तो मैं वो 4 सवाल की बात करूंगा। पहला सवाल है, एक मिनट कहाँ गया, हाँ, are the provisions, wording, etc. similar to TADA or POTA? How do they compare? That's the first question. कि टाडा और पोटा के टाडा और पोटा जैसे है या अलग है? इसके प्रोविजन जो है ना, हम यूएपीए से कंपेयर करना चाहिए, क्योंकि टाडा और पोटा डिड नॉट डील विद बैनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस,
Okay, banning of organizations was always dealt with by UAPA. UAPA initially came in late 60s when it was purely a banning of organizations law. पोटा रिपील हो गया, बाद में जो एंटी टेरर पार्ट है वो यूएपीए में लाया गया है. सो यूएपीए वाज द सेंट्रल एंटी बैनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस लॉ. यूएपीए में भी दो टाइप के ऑर्गेनाइजेशन बैन कर सकते हैं. एक तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उनके लिए अलग देयर आर सेपरेट प्रोविजंस, एंड अनलॉफुल ऑर्गेनाइजेशंस, व्हिच इज व्हाट दे आर डूइंग हियर. ओके, अनलॉफुल ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे ये कानून में अभी लाने की कोशिश कर रहे हैं. तो यूएपीए में जो अनलॉफुल ऑर्गेनाइजेशंस की बात की गई है वो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो अनलॉफुल एक्टिविटी में इंडल्ज करते हैं. लेकिन वहां जो अनलॉफुल एक्टिविटी की बात की गई है वो ज्यादा करके सिसेशन, सॉवरेनिटी के बारे में है. यानी कि अगर कोई कहता है कि भारत को इसमें से कोई ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि भारत में से ए या बी स्टेट को निकल जाना चाहिए, या सॉवरेनिटी की भारत की सॉवरेनिटी की बात करता है, तो उनको अनलॉफुल ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट को ओवरऑल करता है. ओके, तो सो ज्यादा करके जो यूएपीए के प्रोविजंस है अनलॉफुल ऑर्गेनाइजेशंस के, वो इसके लिए है कि जो सॉवरेनिटी और सिसेशन की बात, सॉवरेनिटी के अगेंस्ट और सिसेशन की बात करता है, उनके खिलाफ है. यहां जो यूएपीए, यहां जो अनलॉफुल ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत ब्रॉड है. ओके, ये यहाँ सिसेशन और इसकी तो बात की ही नहीं गई है इसमें. इसमें बात की गई है सब डिसोबीडियंस टू लॉ, देन कॉजिंग मिनेस, कॉजिंग एप्रीहेंशन इन द माइंड्स ऑफ पब्लिक, वगैरह वगैरह बात की गई है. तो यहाँ जो अनलॉफुल ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत 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 ब्रॉड है. यूएपीए का भी हम क्रिटिसाइज करते हैं और उसको बोलते हैं कि वो भी बंद होना चाहिए, लेकिन ये तो उससे बहुत 10 गुना ज्यादा टाइप के ऑर्गेनाइजेशंस को इसके अंदर इंक्लूड करता है. तो ये एक बात है. दूसरी बात, दूसरा क्वेश्चन था क्विकली कि how do the provisions of the proposed bill compare with public safety bill that was opposed by Bhagat Singh? अभी इसमें दो बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि जो भगत सिंह ने अपोज किया और जो कश्मीर में लॉ है उसका पब्लिक सेफ्टी एक्ट है, वो लॉज जो थे वो प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज थे. ओके, जैसे कि राउलेट एक्ट, जिसके खिलाफ जलियांवाला बाग में ये हुआ प्रोटेस्ट हुआ और जहां गोलीबारी हुई, वो राउलेट एक्ट है, पब्लिक सेफ्टी एक्ट है, जम्मू एंड कश्मीर का पब्लिक सेफ्टी एक्ट है. वो सब जो है वो नेम सिमिलर है, ये पब्लिक सेफ्टी एक्ट है, ये सिक्योरिटी एक्ट है, लेकिन वो जो पब्लिक सेफ्टी एक्ट है वो प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात करते हैं और ये बैनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं. तो यहाँ इतना थोड़ा फर्क है. How does the bills affect the actions or activities of people in bastis who have formed their own Mahila Mandal, housing society or Buddha Vihar committees? Well, it's difficult to predict how, but I can give you an example. कि अगर आपने एक बस्ती लेवल ऑर्गेनाइजेशन बनाया, एक महिला मंडल बनाया, पानी के, समझो पानी का सवाल है कि पानी नहीं आ रहा है, इससे महिलाएं बाहर आके प्रोटेस्ट कर रही है रास्ते पे कि हमको पानी नहीं मिल रहा है. ये प्रोटेस्ट से मिडिल क्लास को एप्रीहेंशन होता है कि अरे ये क्या हो रहा है, ये तो बहुत गलत है, बहुत गलत है. यानी पानी नहीं मिलना गलत नहीं है, लेकिन प्रोटेस्ट करना गलत है, ये तो बहुत गलत है. तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को भी अगर आज की डेफिनेशन देखे अनलॉफुल ऑर्गेनाइजेशन की या अनलॉफुल एक्टिविटी की, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को भी बैन किया जा सकता है. ओके, करेंगे नहीं करेंगे वो पता नहीं है, कितना हद तक जाएगा ऑर्गेनाइजेशन तब करेंगे वो पता नहीं है, लेकिन अगर आप लेटर ऑफ द लॉ देखें तो कर सकते हो वो बैन. और एक क्वेश्चन है कि there is a provision under the bill to jail anyone who promotes or assists in promoting a meeting of any such organization in any manner or through whatever medium or device. With the broadness of the definition of both organization and unlawful activity, would this provision be broad enough to pick up individuals active on social media who just share details of civil society meetings or protests? देखिए, again, let me just remind you that unlawful activity is related to an unlawful organization. Okay? So merely अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन बैन नहीं है उसके बारे में आप बात करते हैं सोशल मीडिया पे, that doesn't make you liable. Okay, but if the organization is banned, and as I said, the organization का definition is very broad.
Okay, so if any particular activity, I would put it as activity rather than organization. Okay, if any activity is banned by naming it as an organization, okay, then even if you publicize its activities on social media, yes, you would be liable. Okay, so that let's be very clear. And the last question, that what authorities can take cognizance and take action under the bill? Is it that any collector, tehsildar, or lower police officers would be empowered to do so? देखिए, पुलिस ऑफिसर, मैजिस्ट्रेट वगैरह का रोल तब आता है जब ऑर्गेनाइजेशन को अनलॉफुल डिक्लेयर किया जाता है. तो सबसे पहले स्टेट गवर्नमेंट यानी होम मिनिस्ट्री डिक्लेयर करेगा कि ऑर्गेनाइजेशन अनलॉफुल है. एक बार डिक्लेयर हो गया अनलॉफुल है, फिर पुलिस ऑफिसर जाके किसी को भी पकड़ सकता है, बोल सकता है कि तुम ये ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट हो, तुमको हम जेल में डाल रहे हैं. ओके, लेकिन अनलॉफुल डिक्लेयर होने के पहले नहीं कर सकता है. लेकिन अनलॉफुल जब डिक्लेरेशन का काम गवर्नमेंट का है, उसके बाद पुलिस पुलिस किसी को भी अरेस्ट कर सकता है कि आप इसके मेंबर है वगैरह वगैरह. दूसरा, जो मैजिस्ट्रेट है, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, उनको पावर है प्रॉपर्टी अटैच करने का. यानी जैसे मैंने पहले भी बताया जब मैं बात कर रहा था कि कौन सी भी मूवेबल प्रॉपर्टी या मूवेबल प्रॉपर्टी अटैच कर सकते हैं, वो अटैच करने के लिए डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की परमिशन चाहिए और मैजिस्ट्रेट की परमिशन चाहिए. तो वहां मैजिस्ट्रेट का रोल आ जाता है और फिर तो कोर्ट में केस चलेगा, नॉर्मली. सो सबसे पहले उसे अनलॉफुल डिक्लेयर करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को डिक्लेरेशन करना पड़ेगा. वो महत्वपूर्ण है. ओके, आई थिंक आई हैव ट्राइड टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस. थैंक्स. No, you've just one more. Avinash Patil has a question. My perception is the law mentioned about organization, group of persons, not only persons. This is actually Avinash could not join earlier because of this capacity of 100. So he didn't. Okay. He couldn't listen to me earlier. But that is a thing, that there is a. So the point is that yes, it targets organization, but the organization is so loosely defined that it can ultimately target any individual. That is a point. So it is not directed at individuals who commit unlawful activities unless they are part of an unlawful organization, or unless, okay, even if they are not part of the unlawful organization, unless they actively participate or not actively, but participate in some activity, as Kalpana was saying, even by writing about it, etc., going to a meeting in which unlawful organization might be there, so-called unlawful organization. Then even if you are not a member, you can, if you are a member, 3 साल की जेल. अगर आप member नहीं है और करते हैं तो 2 साल की जेल. That is the difference between an individual who is not a member and an individual who is a member, who somehow or the other helps passively or actively an unlawful organization. That's the law. Yeah, thanks. और एक और लास्ट क्वेश्चन है उल्का, संध्या और कल्पना के लिए. सुनील मनर का, हम आगे क्या करने वाले हैं इस कानून के खिलाफ? बड़ा जन आंदोलन होना चाहिए, आगे की अपडेट्स कार्यकर्ता को मिलती रहनी चाहिए. इस अपडेट्स के लिए कोई ग्रुप बना हो तो कार्यकर्ता लोगों के नंबर लेके एड्रेस करके, ताकि जन आंदोलन बड़ा और यशस्वी बन सके. Anyone wants to comment on this? He's making a suggestion. सुनील का सजेशन मेरे प्रेजेंटेशन से पहले था. मैंने जो बताया कि कैसे महाराष्ट्र में ये आगे बढ़ रहा है और आगे प्लान हो रहा है, उसकी जानकारी दी जाएगी. ये जो 28 तारीख की मीटिंग है, उसमें पूरे महाराष्ट्र लेवल का एक्शन प्लान किया जा रहा है, और उसमें उसकी बाकी जो मोडालिटीज है वो भी तय होंगी. Okay, so we have some time. If anyone wants to, अगर किसी को कुछ suggestions देना है कि आगे क्या कर सकते हैं, please go ahead. You can even either put it on the chat or raise your hand, because we have some 15-20 minutes. किसी को कुछ बोलना है? Deepak Negi has posted a question. If anybody has aired their opinions on social media platforms in the past, will the past social media posts also get covered under this law? If Gayatri or Mihir, if you all want to take that question. Mihir?
एक मिनट उदय, आपका हाथ देखा मैंने, एक मिनट। मिहिर, Yeah. The question, it's very simple. Like under UAPA Act, before your membership, you can't be charged under the Act. Or before it is declared as unlawful, you can't be charged under the Act. Okay, but after it is under, but if you are a member, after it continues to be declared as unlawful, then you can be charged. So अगर उस पहले आपने कुछ पोस्ट किया, लेकिन अभी देखो इसमें क्या हो रहा है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि यानी कानून के अंदर तो ऐसा लिखा गया है कि अनलॉफुल डिक्लेयर होने के बाद अगर आपने एक्टिविटीज कुछ की तो उसके लिए आपको ये कानून के अंदर आपको डाला जा सकता है। लेकिन दूसरा भी एक जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं PFI का, ओके, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का बैनिंग हुआ 29 सितंबर को, ओके, 29 सितंबर 23, और लेकिन लोगों को अरेस्ट किया था, मैसिव लेवल अरेस्ट पूरे इंडिया में 22 सितंबर को, और जुलाई से चालू हुआ था, 22 सितंबर तक अरेस्ट किया था। तो कोर्ट में ऐसा आर्ग्यू किया गया कि भाई ये तो बैन हुआ नहीं था तो आप अरेस्ट कैसे करते हैं। तो उनका कहना ऐसा था कि नहीं, कानून का तो वायलेशन उन्होंने पहले किया ही था, इसलिए हम उनको अरेस्ट कर सकते हैं। और हो सकता है हम अनलॉफुल एक्टिविटी के अंदर अरेस्ट न करें, लेकिन बिकॉज दे वायलेटेड सम अदर लॉ समवेयर एल्स, वी आर अरेस्टिंग देम बिकॉज दे वायलेटेड द लॉ एज मेंबर ऑफ PFI। ओके, तो इस तरह का आर्ग्यूमेंट चल रहा है, वो कितना चलेगा नहीं चलेगा पता नहीं। अभी एक बेल एप्लीकेशन है जो हमने आर्ग्यू किया था 2 दिन पहले, इट इज रिजर्व्ड फॉर ऑर्डर। आई डोंट नो व्हाट विल हैपन टू दैट, एनीथिंग कैन हैपन, बट so that is one way. But ordinarily, okay, the act will apply prospectively from the date on which it is the organization is declared as unlawful. But if there is any activity which the organization has done before that date on which it is declared as unlawful, if that activity independently is treated as a criminal activity, then of course you can be charged even for something which you have done before that. That is the truth. ओके, उदय आप अनम्यूट करो, आपका म्यूटेड है। उदय, यू आर म्यूटेड। उदय आपका आप म्यूटेड है उदय। You have to unmute, Uday. Can I, till he understands that he's muted, can I ask someone else? Deepak, No, maybe he can't unmute. Can you unmute him? I can't. Yeah. Now he's Lara? unmuted. Now he's One unmuted. second. Option to Okay, Yeah. okay. Okay, Uday. Now, Go ahead. yeah, इतना ही अपील करना है. I would like to appeal everyone to join the meeting on 28th, which is called by all trade unions. You lawyers and social workers can guide us. You will also know what is the further action going to be taken by the trade unions and how trade unions are going about it. And we can all plan a joint action in future. जैसे जन आंदोलन का बात हुआ वो कर सकते हैं. तो मेरी सबसे अपील है कि बड़े संख्या में ज्वाइन हो जाए. 20th 2 बजे RMMS के ऑफिस में नायगांव अंबेडकर भवन. आप एड्रेस all. जरा चैट के ऊपर डाल दीजिए, एड्रेस। हाँ जरूर जी. अंबेडकर भवन. Everyone knows, but still डाल देता हूँ. No, just put Okay. it. Thank you. Deepak, Thank you. Deepak, हेलो yeah, we can hear you. हेलो हाँ, वो संध्या गोखले में बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन था, और मुझे भी सेक्ट के बारे में पता नहीं था. कोई फ्रेंड ने मुझे भेजा कि भाई ये मीटिंग अटेंड करो, तो इट्स अ वेरी गुड थिंग. संध्या गोखले सभी स्पीकर का अच्छा लगा प्रेजेंटेशन, उनके व्यूज, और सबसे ज़्यादा मुझे अच्छा लगा संध्या गोखले जी ने जो आइडिया दिया है कि हम लोग अभी डिफेंसिव सारा हो रहा है, इतना हम लोग वो कर रहे हैं कि वो जो पब्लिक सिटीजन्स बिल जो है, जो जितने भी लॉ आएंगे, क्या क्या लॉ आएंगे वो किसी को भी पता नहीं है. पर एक इनोसेंट आदमी अगर तो एकदम बहुत ही
सुन के मुझे लग रहा है तो कोई भी कुछ फिर एकदम राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो पूरा लोगों का खत्म ही हो जाएगा अगर इस कानून का स्वरूप है तो मुझे ज़्यादा पता नहीं उस बारे में। तो उन्होंने जो बोला कि और ऐसा इंग्लिश में कहावत भी है कि द बेस्ट डिफेंस, को अपने आप को सुरक्षित करना है तो हमें मतलब ऐसा कानून लाना पड़ेगा जो नागरिकों के हितों की रक्षा करे। तो ये बहुत अच्छा आइडिया है, सोचना चाहिए कि कैसे हम लोग पुश कर सकते हैं। Thank you. Thanks, तो Pia. हेलो। तो मुझे बस इतना कहना था कि आप सबके बात सुनने के बाद जैसे हम डायरेक्शन आगे ले रहे हैं इस बात को आगे बढ़ाने का और सब लोगों को बताने के लिए, मेरे हिसाब से सिर्फ इसको ऑर्गेनाइजेशन तक ही नहीं रोककर अगर हम और जितने हद तक अपने अपने रीजन में कम्युनिटीज में बस्तियों में ये बात लेके जा पाएंगे और फिर उसका एक शायद एक सिग्नेचर कैंपेन के तौर पर अपना पब्लिक रिस्पांस का ऑब्जेक्शन का नंबर बढ़ाकर इस बिल को अपोज कर सकते हैं तो एक बहुत बेहतर चीज रहेगी। और साथ में मतलब हमें एक और जो ग्रुप को इसमें जोड़ना चाहिए वो यूथ और स्टूडेंट्स भी हैं। अगर उनके साथ में भी एक्टिविटीज करी जा सकती हैं अवेयरनेस के जन चेतना के लिए तो वो एक बेटर रहेगा। और हमारा संगठन जो है उस तरफ से ये कोऑर्डिनेशन का एक्टिविटी मुंबई के रीजन में वहाँ ले सकते हैं, तो अगर ये सुझाव में रखना चाहते थे बस। Yeah, thanks, Pia. Mukta. Yeah, hi. See, I have written that, but I just want to emphasize again. So one of the idea in my mind was to, can we have a regional press conferences, by some people, because a lot of people still may not be knowing much about this act and much about the thing. Even local level Karyakartas also might not be knowing. They might be knowing that there is something like this, but they may not know. So, and also it will create the kind of, a kind of to create a discourse about it. If a region-wise press conferences can be done, not only in Bombay, and so that local, at least some local newspaper could cover, So it could be like Marathwada region, Vidarbha region, region-wise like that. If we could think of one of the action like that initially, and then from there we can also think of having. So it could be a press conference come, a meeting of the local activists over there. So that could be the one of the ideas that I was having. So I wanted to share that. That's Anyone else? Gayatri, there's a question from Ajit. Okay. Yeah. Can someone throw some light on the advisory board and the extent of power they seem to have? Also, whether an organization or one that is deemed to be an organization can have lawyers arguing their case in front of this board. Also, what is the point of this board? So, Yeah. Can I just answer it quickly? Yeah. See, the idea of an advisory board under the law, under the act, is ordinarily before the state government declares anybody as an unlawful organization, it has to place its material before the board. Okay. And only after the board says yes, can you normally declare an organization as unlawful. Okay, advisory board, which is supposed to have retired judges, etc., chairing it. Okay, or people who could have been judges and have the eligibility of becoming judges, they are chairing it. This is the ordinary thing. But there is an extraordinary power, which I mentioned when I was speaking, of the government to ban it even without referring to advisory board, but in emergency. So they can just one fine day issue a notification saying that you are banned, like it happened with PFI, for instance, or like it happens everywhere, every time under UAPA. Once it is banned, within 15 days, an organization can approach the advisory board. Okay, saying that, look, these are the reasons why we should not be banned, etc., etc. Even if the organization doesn't go to the advisory board, okay, the government has to refer even a banned organization to the advisory board for its this thing. Now, in the advisory board, while it is not mentioned here very clearly in the act, but under UAPA, under the rules, okay, when an organization is banned and then you can appeal to the advisory board, lawyers can appear and argue before that. They have been doing so regularly, not with much success, of course, but the point is that lawyers can go and argue and satisfy the board that look, we are wrongly
we have wrongly been called, we have wrongly been banned, and the advisory board's opinion, though it is called advisory, is ordinarily held to be binding on the government. Okay, so if the advisory board says that don't ban it, then the government is required to lift the ban. That is how that is the structure of the whole thing. So if there are no more questions or comments, we can close this session. I would just, I think is there anyone? response from the other speakers also on some of the ideas that have, been Yes, put up yes, by yes. Priya and all of them. Yes. Kalpana, Ulka, Sandhya. आप जरा कमेंट्स दे सकते हो कि क्या मतलब लोगों ने बोला है कि क्या क्या करना चाहिए, लेकिन कुछ कंक्लूडिंग रिमार्क्स? नहीं, मैं इतना ही बोलना चाहती हूँ कि किसी भी हालत में इस कानून को आगे बढ़ने नहीं देना चाहिए, और क्योंकि स्टेट लेजिस्लेचर में हमारी ताकत नहीं है विपक्ष की, ये लोगों के बलबूते पर ही और उनकी ताकत के साथ ही आगे बढ़ सकते। तो ऐसा माहौल महाराष्ट्र में खड़ा होना चाहिए कि हम ये नहीं चाहते, और हम भली भांति इस चीज को समझते हैं कि ये जन की सुरक्षा के लिए नहीं है, ये तानाशाही सरकार की सुरक्षा के लिए कानून बनाया जा रहा है। तो ये कहते हुए अगर स्टूडेंट्स, फार्मर्स, वर्कर्स और बाकी सारे आम लोग भी अगर रास्ते पर उतर आए तो एक तगड़ा मैसेज जा सकता है और उससे एक माहौल बनेगा। तो वो करना बहुत बेहद जरूरी है। वो उसके करने के तरीके कई सारे हैं जो मैंने मेरे प्रेजेंटेशन में भी रखे थे, आप भी उस पर सोच सकते हो और भी जोड़ सकते हो, लेकिन इसका एक माहौल, तगड़ा माहौल महाराष्ट्र में खड़ा करना बहुत जरूरी। कल्पना? मुझे लगता है वो मुक्ता ने जो सजेशन दिया कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो अलग अलग जगह में, वो अच्छा आइडिया, क्योंकि मीडिया जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है तो एक्चुअली इसके बारे में लिखती तो है, नहीं तो लिखती भी नहीं है, और जो लिखेंगे, वो जो एक्सपर्ट लिखेंगे एडिट पेजेस पे, वो कोई पढ़ता नहीं है। तो अगर न्यूज पेजेस पे आएगा तो इसमें कुछ डिस्कशन की बात हो जाएगी ना, इंफॉर्मेशन भी आ जाएगा। तो आई थिंक वो अच्छा आइडिया है अलग अलग जगह में ऐसे करना। या संध्या? मेरे को लगता है कि अभी यहाँ काफी संगठना के लोग आए होंगे, अगर अपने अपने संगठना में लोगों का ग्रुप में डिस्कशन लेके, ताकि बस्ती में हो जाए, जैसे कि बचत गट हो तो बचत गटों के साथ बात करना, या पिया ने जैसे बोला कि स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन हो उनके साथ बात करना, और जहां भी हमको छोटा भी ग्रुप मिले उनके साथ बात करना चाहिए। उसके साथ साथ अगर यहाँ पे और कोई आर्टिस्ट हो कि जो कुछ पोस्टर्स बना सकते हैं जिसमें हम ये मुख्य चीजें ये कानून की डाल के फिर हम सोशल मीडिया पे उसको वायरल कर सकते हैं, रील्स या पोस्टर्स बना सकते हैं। अगर ऐसे कोई आर्टिस्ट हो और वो वॉलंटियर करे अपना टाइम, तो उनको मटेरियल देना और फिर वो अपने विचार से कर सकते हैं कि किस तरह से। और ऐसे अगर 2-3 आर्टिस्ट हो इकट्ठा आके एक ग्रुप बने और हम सोशल मीडिया कैंपेन अगर प्लान करें अलग अलग लैंग्वेजेस में, कम से कम मराठी, हिंदी, इंग्लिश, 3 लैंग्वेज तो महाराष्ट्र के लिए होनी चाहिए, तो वो भी एक हम कर सकते हैं अगर लोग अपना कुशलता और टाइम देने को तैयार है। और अगर स्टूडेंट के साथ कोई भी मीटिंग करना है तो कोई लॉयर्स को, हमारे यहाँ बहुत सारे लॉयर्स भी है, अभी PUCL में भी है, यहाँ भी ज्वाइन हुए हैं। तो किसी भी संगठन को किधर भी अपने मेंबर्स के लिए मीटिंग करना है तो वो तो बता दे, तो कोई ना कोई रिसोर्स पर्सन आपको मिल जाएगा जो लोगों के सवाल जवाब के ऊपर बात कर सकता है और ज्यादा मालूमात लोगों तक पहुंचा सकता है। और मेरा जो सुझाव था वो खाली एक व्यक्ति को अच्छा लगा, वो सुझाव मेरे को लगता है कि हमने सोचना शुरू करना चाहिए, क्योंकि हम जैसे सोचते हैं वो जब हम सोचेंगे ना, तब हमको उसमें से करंट सिचुएशन को काउंटर करने वाले भी कुछ सुझाव आएंगे। तो अगर कुछ लोगों को इंटरेस्ट है, 3-4-5 स्टूडेंट, लॉ स्टूडेंट्स हो, लॉयर्स हो, मैं तो लॉयर नहीं हूँ फिर भी मैं ज्वाइन होने को तैयार हूँ, ऐसा अगर हम कोई एक ग्रुप बना सकते हैं कि जो इसके ऊपर लंबे दौर के, मैं नहीं बोल रही हूँ तुरंत बनाना चाहिए, लेकिन लंबे अरसे तक
हमको इसके ऊपर काम करना पड़ेगा, क्योंकि हमको पता नहीं। और क्या होता है ना, ये बिल को हम जैसे इन्होंने प्राइवेट मेंबर बिल बोल के करते हैं ना पार्लियामेंट में, अगर हम ये सचमुच अच्छी तरह से बनाते हैं ड्राफ्ट, तो हम कोई भी अपोजिशन पार्टी के प्राइवेट मेंबर को बोल सकते हैं कि इसको इंट्रोड्यूस करो और इसके ऊपर डिबेट रखो। तो वो अपना स्ट्रैटेजी अगर हमने सीरियसली लिया तो हम कर सकते हैं, और ऐसे भी हमको मेंबर्स मिल सकते हैं जो ये प्राइवेट मेंबर बिल बोल के भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन हमको ये देखना जरूरी है कि ये लॉ किसी तरह से वेपनाइज नहीं होना चाहिए, ये प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होगी। बस इतना ही बोलना है। गायत्री, कैन आई से समथिंग? आई जस्ट वांट, sure. मुझे सिर्फ एक ही बात बतानी थी कि आई थिंक व्हेन वी ट्राई टू कैंपेन अबाउट दिस लॉ, अगेंस्ट दिस लॉ, one of the most important things is that we are able to communicate that this law will not only target activists or leaders. Okay, this is going to target common people. If a Yes. trade union is declared as unlawful, it's not just the leaders who will be arrested. It will be also people who are members of the trade union, or similar with women's organization, housing rights organizations, farmers organizations, etc., etc. So this law is not just about targeting active members of the civil society or something like that. It will target ultimately the common people, and I think that is something, that message has to go through somehow. Yeah. I don't know how, but that has to go through. That's all. Thanks. Yeah, that's one thing I wanted to emphasize. That's great. Deepak wants to say something, then I think we'll close the discussion. Deepak? हाँ, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि सबसे इफेक्टिव वे लोगों में अवेयरनेस करने का मुझे जो लग रहा है वो ये लग रहा है कि जो प्रोमिनेंट यूट्यूबर्स है जिनकी मिलियंस में फॉलोअर्स है, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद भी ट्रेडिशनल मीडिया तो सबको पता है कितना कवर करता है। आजकल लोग कितना, स्मार्टफोन सबके पास है, आप कहीं भी जाएंगे तो हर आदमी आपको मोबाइल के अंदर घुसा हुआ दिखता है। तो सबसे इफेक्टिव वे मुझे ये लग रहा है जो इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को, जिसको ख़त्म करने के लिए ये सारे कानून बनाए जा रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे, सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, ये पूरी दुनिया में हो रहा है। और बड़े प्रोमिनेंट यूट्यूबर जैसे ध्रुव राठी, उसके 25 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर है। अभी जो रिसेंटली केस हुआ इधर दिल्ली में, दिल्ली हाईकोर्ट के जज ने 15 करोड़ रुपए पकड़े गए, वो दबा रहे थे सुप्रीम कोर्ट वाले, लेकिन वो जब हाईलाइट हो गया मीडिया में तो कुछ यूट्यूबर्स ने बनाया और मुझे भी उससे पता लगा। ये जो कानून है, सच में बताओ फ्रैंकली मुझे भी पता नहीं था इसके बारे में। बहुत सारे कानून हमको पता नहीं चल पाते ना, तो अवेयरनेस नहीं थी, तो मुझे मेरे दोस्त ने फॉरवर्ड किया कि ये है, तब मुझे पता लगा फ्रैंकली, भले मैं सोशल फील्ड में काम करता हूँ। तो आकाश बनर्जी, ध्रुव राठी और भी बहुत सारे यूट्यूबर्स है, वो हम देखेंगे, उन तक अगर किसी की पहुंच हो और उनको बोले कि भाई इस पे आप वीडियो बनाओ, तो मेरे ख्याल से काफ़ी कम समय में बहुत ही इफेक्टिव तरीके से हम लाखों लोगों तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि महाराष्ट्र में भी जो 8-10 करोड़ हमारी पॉपुलेशन है, उसमें भी सारे लोग यूट्यूब पे है, तो बहुत ही कम समय में इफेक्टिव तरीके से सबको इस बारे में पता लग जाएगा। थैंक यू। थैंक यू। सो आई थिंक हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं। मुझे इतना ही बोलना है कि आज जो लोग ज्वाइन हुए हैं अलग अलग संगठन से और इंडिविजुअल्स, उनका हम लोग लिस्ट तो है ही, और अगर सब लोगों का विरोध नहीं है तो हम लोग कांटेक्ट में रहेंगे ताकि ये फॉलो अप हो सकता है। ये सिर्फ एक मीटिंग नहीं है जहाँ पे डिस्कशन हुआ, हम लोग फॉलो अप करना चाहिए जैसे लोगों ने ऑलरेडी सजेशन दिया है। दूसरी बात है कि इमीडिएटली जो करना चाहिए वो है 1 अप्रैल तक ऑब्जेक्शंस जाना चाहिए। तो हम लोगों को लगता है कि ज्यादा से ज्यादा संगठन, इंडिविजुअल्स अपने ऑब्जेक्शंस 1 अप्रैल तक भेजना चाहिए। पीयूसीएल ने ऑलरेडी पहला वाला जो बिल निकला है उसका ऑब्जेक्शंस भेजा है वापस। हम लोग इसमें सेकेंड वाला जो बिल है उसमें ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, जस्ट माइनर चेंजेस, लेकिन फिर भी हम वापस से हमारे ऑब्जेक्शंस भेजने वाले हैं। और हमारे जो ऑब्जेक्शंस है वो ऑलरेडी ग्रुप के ऊपर डाला है, पीपल वांट टू हैव अ लुक एट इट। So I think that with this we will close the discussion. Thank you.